So this is lecture 8. Welcome for income from house property assessment year 2022-23. This is for June 2022 attempt CMA intermediate. ठीक है, ये lecture 8 है income from house property का और हम 8th problem में थे. चलिए अभी हम 8th problem करेंगे. तो सबसे पहले यार ना इस प्रॉब्लम में बस इतना है कि थोड़ा सेंटेंस वाइज दे दिया. वैल्यू डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपैलिटी फॉर डिटरमिनिंग म्युनिसिपल टैक्स, देन रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी. सो जिसको डेफिनेशंस मालूम होंगे वही बोलेगा कि ये फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है. ओके, जब जस्ट थोड़ा चेंज अप किए, जिसको प्रॉब्लम्स मालूम होंगे उसको मालूम ही होगा. सो हियर दे हैव जस्ट चेंज्ड द way they give it, right? They've not given it a standard rent, fair rent, but they've given kind of the definitions of those things. So that the person who knows, he will only be able to write it appropriately. Okay, so chalo, use these three things and give me the RER. Okay, previous year is entire 12 months, so just give me the RER. And then we will. Sir, for house 1, 500. House 720, 2, it's 600. 720 is 600. 500, 720, 600. Yes, sir. Okay. So चलो अभी next इसमें जाएंगे. Let's see what is given. इसके अलावा, so here actual rent receivable is 350. This is receivable. Okay, and here period when property remains vacant is 532 months. 5 months, 3 months, 2 months. Okay, so this means this rent receivable is for 7 months. This is for 7 months. Okay, so this is for 7 months. This is for 12 9 minus months. Yeah, and this is for 10 months. Okay, so ये so always इसमें बस ये याद रखना है कि जो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है ना, उसका पार्ट रहेगा अनरियलाइज्ड रेंट, लेकिन उसमें नहीं रहेगा वैकेंसी. ओके, always remember this, that actual rent receivable unrealized will be there. Okay, तो एक बात ध्यान में रखना है, लेकिन वैकेंसी नहीं रहेगा. लेकिन जहाँ पूरा एनुअली या फुल ईयर ऐसा सब दे दिया है, अगर फॉर कंप्लीट प्रीवियस ईयर ऐसा कुछ दे दिया है, दैट मींस उसमें पूरा 12 मंथ्स का उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा. ओके, वो जेनरिक फिगर बता रहे कि एक साल का रेंट कितना पड़ता है करके. सो व्हेन दे यूज दिस वर्ड along with whole year, or we had seen in some examples, right? Annually, something like that. Okay, when they suggest that it is the generic figure, then this figure will have everything included, vacancy as well as UR. Okay, but if that annual or something like that, complete previous year, that is not given, they give only actual rent received or receivable. Okay, then it will not have vacancy, it will have unrealized rent. Okay, remember this. चलो अभी unrealized rent for the previous year is this. Okay, so this violet line which I have drawn here, okay, it is included in this. Okay, it is included in this 350. ठीक है, ये पॉइंट समझने की जरूरत है पहले. सो चलो अभी आगे करते हैं इसके प्रॉब्लम. RER we had taken out. Okay, just find out period vacant. It's already given, right? 532. So period occupied is 7, 9 and 10, right? 12 minus 5, 12 minus 3, 12 minus 2. Now find out rent per month. How? For period occupied, multiply annual rent receivable by this period occupied. Okay, by this.
multiply 350, 540, 600 by 7, 9, 10 respectively. So you will get rent per month. Okay, so your rent per month is 50, 60 and 60. So based on this, we have found out vacancy rent, because vacancy rent is the difference between step 4 rent and step 2 rent. So which is why we had to find vacancy rent separately. Okay, in step 2 rent we will add this line. अभी आप देख लो step 2 का जो भी रेंट आएगा हमारा, क्या करेंगे उसमें ये लाइन बस ऐड कर देंगे तो step 4 रेंट मिल जाएगा. step 2 और step 4 का डिफरेंस सिर्फ वैकेंसी. ठीक है, दोनों के लिए जो है ना ARR माइनस UR यूज होता है, स्टेप 2 के लिए भी स्टेप 4 के लिए भी. बस स्टेप 4 में वैकेंसी ऐड हो जाता है. ओके, स्टेप 4 वैकेंसी इज एडेड. Both for step 2 and step 4 you have to use ARR minus UR. Okay, so chalo, so now for step 2 what will happen, you will take this and you will deduct what, you will deduct this, then you will get step 2 rate. Okay, got it? So 350 minus 10, 540 minus 0, 600 minus 150, this is your step 2 rate. So let's see whether our answer matches. Okay, so step 2 matching now. देखिए आप लोग Yes, sir. स्टेप, हाँ, Yes, sir. okay. Now step 3, there is vacancy in all 3. Okay, there is vacancy in all 3. So step 3, higher of the two, is step 2 higher? It's not higher in any of the 3. Okay, so you have to go to step 4. So इसमें जो है आपको जो हमने लास्ट वैकेंसी रेट वहां निकाले थे उसको इसमें ऐड कीजिए आप, तो आपको ये आना चाहिए. You should get this. What were these figures? If you want, I can take it to the right. Okay, this is your vacancy rent. Let me paste it here. Okay, so just add in these figures, add this vacancy rent, then you will get the green line. Okay, बड़ा भाई मिल जाएगा आपको, elder brother you will get after adding those two lines. Okay, so now because step 2 is lower in all cases, now what we'll do is we have to use, this is your RER. Okay, okay, compare it with step 4 red line, but red line will not come in answer. Okay, so compare green line with the red line. Okay, if step 4 rent, that is red line, is equal or more, if it is equal or more, choose step 2. Okay, if it is less, choose the green line. Okay, समझ गए सर? तो क्या कंपेयर करते हैं इसमें, 590 is more, correct? तो चलिए मैं इसके लिए दूसरा कोई कलर लेता हूँ, ब्लू. ठीक है, अब नाउ फर्स्ट में कितना, 500 और 590, this is more, so I will take 340. Any doubt here? Anyone? Anyone? Next is 720, 720, equal or more, again equal or more, so I'll take 540. Okay, last is 600, 570, less, it's less, I'll take 600. Any doubt? Anyone? किसी को कोई डाउट है? इसमें थोड़ा सा जो बस कंफ्यूजिंग पार्ट इसमें हाउस प्रॉपर्टी में ये रहता है ना कि आपका जो ARR माइनस UR जो है, ARR में क्या है क्या नहीं है, व्हाट इज इंक्लूडेड व्हाट इज नॉट, उसका थोड़ा सा एक डाउट एक रहता है, प्रॉब्लम उसमें थोड़ा सब्जेक्टिविटी जो है, बट इफ यू लुक क्लोजली आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है. बस एनुअल या कंप्लीट प्रीवियस ईयर ऐसा दिया है, सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. ओके, ओनली ऐसा दिया एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, देन रिमेंबर उसमें जो है अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, समझ लीजिए. ठीक है सर, अनरियलाइज्ड रेंट इंक्लूडेड है उसमें,
ठीक है, जो वैकेंसी है वो कभी नहीं रहेगा। जब खाली रहेगा घर तो हम उसका रेंट कोट नहीं करेंगे, हम नहीं बताएंगे इसका, करेक्ट। तो इसीलिए more or less UR is also like that, but actual rent receivable में you include UR, बस ये कन्वेंशन से चल रहे हैं इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, बस ये पॉइंट है। कुछ चले आगे, you can move ahead. Sir, हाँ, yes. sir, if in the same question, if it was written actual rent received, then unrealized rent If should they would not have be taken given into account. actual rent received, okay. So Received. question, the Shivam says if they say actual rent received, तो क्या करते बताइए आप लोग। सर फॉर मी देन अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस नहीं करते क्योंकि यही रिसीव्ड है, ये एक्चुअल। परफेक्ट। तो क्योंकि Yes, sir. अब ये बोल रहा है कि रिसीव्ड है, ठीक है, तो जो अनरियलाइज्ड है वो तो आपको रिसीव्ड नहीं हुआ होगा, ये तो बात साफ है ना। तो इसीलिए अब ये अगर रिसीव्ड बोल देता है यहाँ पे, तो हम ये मान लेते कि ये अनरियलाइज्ड रेंट भी नहीं है उसमें, ये भी नहीं है, और वैकेंसी भी नहीं, ये भी नहीं है, वैकेंसी भी नहीं, ये सिर्फ रिसीव्ड अमाउंट है। रिसीव्ड बोलता था, मैं रिसीवेबल बोल दिया, या दोनों को मिला के बोल दिया, रिसीव्ड और रिसीवेबल ऐसा बोल दिया, तो यही ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, सिर्फ रिसीव्ड बोला तो अलग बात है, रिसीव्ड और रिसीवेबल बोल दिया तो भी सेम मानेंगे जैसा अभी माने। ओके, रिसीव्ड बोल दिया तो ना, जो हाथ में लगा है वही हम बात करेंगे। ओके, आज काफी अच्छा पेस हुआ, हमने काफी क्लास कवर हुआ आज हमारा टुडे, इट्स बीन गुड टुडे, पेस वाज गुड। सो नाउ नेक्स्ट इज टैक्सेस लेवीड बाय लोकल अथॉरिटी। ठीक है, ये हमने थोड़ा पहले बताया था मैंने आपको। जो फॉर्मेट है आपका, इट इज GAV लेस म्युनिसिपल टैक्सेस इज इक्वल्स टू नेट एनुअल वैल्यू NAV, फिर दो डिडक्शंस है ना, तो वो म्युनिसिपल टैक्स की बात कर रहे हैं। शो यू, ये देखिए, ये नहीं, ये तो आपका ये है GAV, ये ठीक है, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का मेन ये है। तो स्टेप 4 है, वो सारे स्टेप्स करके आप GAV निकालते, यू रीच ओनली हियर आफ्टर दोस 4 स्टेप्स। देन आपको म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट करना है ओनली ऑन पेमेंट बेसिस, ऑलवेज रिमेंबर, म्युनिसिपल टैक्स एक्रूअल बेसिस पे नहीं है। ठीक है, जितना पेमेंट करेंगे करंट ईयर या उससे पहले, करंट प्रीवियस ईयर, अभी का प्रीवियस ईयर, या उसके पहले का जो भी पेमेंट होगा वो सब आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका लॉजिक ये है कि म्युनिसिपल टैक्स कई बार लोगों का 4-5 साल का पे नहीं करते हैं ना, एक साथ पे करते हैं, तो इसीलिए वो साथ में आप ले सकते हैं। करेक्ट, तो क्योंकि जब पे नहीं किया होगा तब तो मिला नहीं होगा डिडक्शन पेमेंट बेसिस में, तो एक बार तो डिडक्शन देना ही है, राइट, शुड गेट वन डिडक्शन एटलीस्ट, राइट। सो दैट्स व्हाई इफ म्युनिसिपल टैक्स इज फॉर द प्रीवियस ईयर or any earlier previous year and you have paid it in the current previous year, you will get deduction. Okay, payment basis, not accrual basis. Okay, remember. Then you get NAV, net annual value. Then you have these two deductions. First one is straightforward, just 30% of this. Okay, then this is interest on borrowed capital. So this is also like we would need 2 lectures at least to complete this part. Okay, this has some level of complexity. So once this is done, the chapter is done. So I think pretty much next week, this is Tuesday, right, today? So I think by Sunday and Monday, 6 lectures, we will be able to complete house property. So such that on Tuesday we can start salaries. Okay, so fine. Chalo. Right. So taxes levied by local authority. It's called municipal tax. Percentage of net municipal value. Okay, always remember percentage of net municipal value.
and allowed as deductions. So gross municipal value and net municipal value are the same for all cities except those four. Okay, in those four we had talked about this, correct? Last time हमने बात किए थे आपका दिल्ली, ये जो चार बड़े सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मेट्रोपॉलिटन 4, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं आप, इसमें जो है सबसे पहले आपका जीएमवी होता है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं है, याद रखना, ठीक है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू अगर 100 है, चलिए एक रिपेयर्स अलाउंस देते हैं, नॉर्मली वो 10% देते हैं वो, ठीक है। तो ये आपको लेकिन प्रॉब्लम में देंगे, क्योंकि इनका जो रिपेयर्स अलाउंस है वो सपोज जो असम में रह रहा है उसको क्या मालूम होगा, करेक्ट? इसलिए दे विल गिव इट इन द प्रॉब्लम्स, बट इट इज 10% नॉर्मली. So repairs allowance is 10%, then your net municipal value becomes this. On this, they give a water sewerage tax, some percent. Now, this can be 5, this can be 8, it will be given in the problem. This mostly will be 10, will be given. But so this is how you'll get your final NMV. Right? And for house property computation, you need this figure, always remember. Okay? So when this is given, normally you will have, even if you have these 4 cities in problems, you might not need these things. The information will be such that you will not need to go here. Okay, this will be asked only when this is asked specifically. It will be a 4-mark question or something. Okay, for all your general type of problems, this will not be asked. This will not be asked. Okay, so this is, for example, here if final NMV is given as 20,000. Okay, I'm just repeating. Last time I think Shivam had asked to repeat. Okay, ये इसमें अगर ये 20,000 है तो आपको सबसे स्टेप वाइज यू हैव टू गो, ठीक है। फर्स्ट आपको 90 में आना है एनएमवी में, तो इसके लिए रेशियो क्या है, 90/85.5 इज इक्वल्स टू, यानी 20,000 इंटू 90/85.5, ठीक है। दिस विल बी योर एनएमवी। लॉजिक ये है इसका कि आपको अगर 90 था आपका एनएमवी तो ये था 85.5 फाइनल एनएमवी। ये 20,000 था, ये 20,000 है, तो ये कितना है? हाउ डू वी कैलकुलेट इट? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। ये तो आपको मालूम ही होगा, ये जो तो कैसे करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इफ यू डू दिस, आपको ये आएगा इनटू 90/85.5 आएगा। ओके, देन यू गेट दिस। नाउ यू हैव रीच्ड दिस लाइन। अब 90 के ऊपर से आपको वैल्यू है, 100 के लिए आप क्या करेंगे, इंटू 100/90, सेम थिंग। ये वाला फिगर ले लेंगे 21,052 वाला, इंटू 100/90 कर लेंगे बस, आपको ये मिल जाएगा। अब ये सही है कि नहीं ये भी मैं चेक कराया था पिछले बार, फिर से आपको करा देता हूँ चेक। ओके, ये है आपका जीएमवी, ठीक है, ये आपका जीएमवी है। अब इसका 10% कितना है, ये है। अब इसमें से ये माइनस करता हूं। ओके, दोनों सेम आ गए। अब ये कितना था, 5%, ठीक है, दोनों सेम आ गए, यानी अपने वैल्यूज करेक्ट। ओके, अंडरस्टूड। इसमें क्वेश्चन किसी को तो पूछ लेंगे, देखिए ये शायद फिर आगे रिपीट होगा नहीं होगा, हमको ये पूछा नहीं जाता है ज्यादा, नहीं उतना ये नहीं है, आपको बस नॉलेज रखना है। इसके प्रॉब्लम्स वगैरह भी कुछ ज्यादा है नहीं सच इसमें से, ठीक है। बहुत ज्यादा ये नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। चलिए ये मैं फिर से बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको जो ये 4 सिटीज है ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इसमें क्या करते हैं वो लोग, जो जीएमवी है, जो भी वैल्यू है उनका, जैसे 10 है, सपोज 100 है, अगर उसमें एक रिपेयर्स अलाउंस देते हैं वो लोग, वैसे ही म्युनिसिपैलिटी वैसा करती है, ठीक है। वो 10% होता है उनका, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा ये परसेंट, नॉर्मली इट इज 10%। तो ये 10 अगर आप यहाँ लिखोगे तो 100 में से 10 माइनस करोगे तो 90 आएगा ना नेट वैल्यू। अब इसकी ये 90 के ऊपर कुछ अलाउंस देते हो कि
वाटर सीवरेज वगैरह के लिए कुछ और अलाउंस देते हैं। वो कैलकुलेशन उनका ऐसा है कि 90 के ऊपर वो देते हैं, तो उनका कैलकुलेशन के ऊपर से अपन वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब 90 का 5% अगर मैंने निकाला तो 4.5 आ गया, ये आप निकालिए कैलकुलेटर में, 90 से 4.5 माइनस कीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपको। तो ये डेटा आपको मिलेगा कि वो देंगे, ये 10% भी देंगे, ये 5%, 8% जो भी ये देंगे आपको। ठीक है, तो ये टेबल आप बना लोगे, ये दोनों दिया है तो टेबल बन जाएगा ना। अब आपको हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको जीएमवी चाहिए, ऊपर वाला चाहिए। अब वो आपको ये दे देगा, सपोज फाइनल जीएमवी दे दिया उसने 20,000। ठीक है, अगर ये दे दिया आपको, तब आपको ऊपर वाला वैल्यू कैसे निकालना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये एनएमवी के लेवल में जाना पड़ेगा, तो उसमें बस ये रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। देखिए कौन सा बड़ा है, देखना 90 बड़ा है ना 85 से, तो ऊपर वाला वैल्यू 20,000 से बड़ा आना चाहिए। ओके, सो इंटू 90 अपॉन 85.5 करना है। ठीक है यहाँ पे ये लाइन में बस यही तीन चीज है, ये और ये। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये 20 को ये दोनों में से ही कुछ करना है आपको, 90, 85.5। You have to use these two only, 90 and 85.5. So will it be 85.5 upon 90 or other way around? तो ये देखना है आपको, आपको ऊपर वाला वैल्यू बड़ा चाहिए ना, 85.5 से बड़ा है 90, तो इसीलिए आपको 90 को ऊपर रखना पड़ेगा, तभी 1 से ऊपर आएगा रेशियो। अगर मैंने 90 अपॉन, देखिए इक्वल्स टू 90 अपॉन 85 पॉइंट किया ना, तो 1 के ऊपर आएगा, तभी वैल्यू आपका 20,000 से ज्यादा आएगा। ओके, तो अब कर रहे हैं इसको, इसमें कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हैं। 20,000 इंटू 90 अपॉन 100, मैं एक्सेल में कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप नीड नॉट गेट कंफ्यूज, आप कैलकुलेटर में करके देखिए। ठीक है, इसमें आप 20,000 लीजिए इंटू 90 अपॉन 85.5, जस्ट डू दिस 20,000 इंटू 90 अपॉन 85.5, सी वेदर यू आर गेटिंग दिस। यस सर। ओके, तो अब आप यहाँ आ गए 90 के लेवल में आप आ गए। ठीक है, नहीं आपको चाहिए 100, ये वाला चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इंटू 100 अपॉन 90 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू ये 21,052 इंटू 100 अपॉन 90, तो ये वैल्यू आ गया आपको, ये आपको चाहिए। ठीक है, ये पूछने का चांस बहुत ही कम है, बट चलिए कोर्स में है तो ये भी आप देख लेंगे तो अच्छा है। अंडरस्टूड? यस सर। चलिए, तो और जो है, तो इसके कुछ कंडीशंस है म्युनिसिपल टैक्स के, पेमेंट बेसिस में होता है। ठीक है, पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और एसएससी ने खुद भरना चाहिए, एक कंडीशन है इसका। ठीक है, तो अगर एसएससी के जगह में टेनेंट अगर भर रहा है तो एसएससी को डिडक्शन नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, इसीलिए इट शुड बी पेड बाय द एसएससी करके कंडीशन है, और पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, अनपेड अगर है म्युनिसिपल टैक्स, टेनेंट ने भरा है तो नो डिडक्शन, मैंने बताया था आपको। इट कैन बी फॉर पीवाई और अर्लियर पीवाई। ठीक है, लेकिन फ्यूचर का नहीं चलता है। जैसे हमारा क्या है अभी 2021 22 पीवाई है ना, आप अगर मार्च 31 मार्च 2022 के बाद में अगर भर रहे हैं तो वो अभी क्लेम नहीं कर सकते, बाद का भर रहे हैं तो बेसिकली। ठीक है, नॉट एडवांस, एडवांस नहीं, करंट और बैकवर्ड्स चलता है। और यहाँ पे देखिए टैक्स पेड टू फॉरेन लोकल अथॉरिटी अलाउड, फॉरेन में प्रॉपर्टी है तो म्युनिसिपल टैक्स वही भरेंगे ना, तो जो भी है वो अलाउड रहेगा। टैक्स एक्सीड्स जीएवी नेगेटिव एनएवी, इट्स पॉसिबल इफ टैक्स इज पेड फॉर सेवरल इयर्स। तो ये मैं बताऊंगा आपको। और कभी कभी म्युनिसिपल टैक्स थोड़ा ज्यादा दे देते हैं तो रिफंड हो जाता है, तो उसका कुछ वो टैक्सेबल नहीं। ठीक है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, छोटा मोटा अमाउंट होता है। रिफंड ऑफ म्युनिसिपल टैक्स इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, ये जस्ट इग्नोर किया जाता है। एडवांस म्युनिसिपल टैक्स पेड इज नॉट अलाउड, जो मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, फ्यूचर का अलाउड नहीं है। अब जीएवी लेस म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल्स टू एनएवी है ना, तो आपने अगर आपका 10 साल का या 15 साल का टैक्स अगर आपने नहीं भरे थे, एक साथ भर दिए, तो ऐसा हो सकता है ना कि ये 100 था, ये सब मिला के 120 हो गया तो -20 हो गया, इट्स पॉसिबल। ठीक है, वो बस याद रखना। ठीक है,
तो ये प्रॉब्लम तो अभी नहीं करेंगे हम, वैसे कर सकते हैं कि चलिए इसको कर देते, छोटा प्रॉब्लम है ये निपटा देते हैं इसको आराम से। ये समझ गया ऊपर का, उसी उसी का प्रॉब्लम है इसी का, तो ये समझ जाएगा आपको। ये हमको इतने सारे घर दे दिए इन लोगों ने, ठीक है, 6 हाउसेस दे दिए हमको, ठीक है। ए वाई 22-23 है कि आपके स्टडी मटेरियल में सब अभी नया नहीं है ना, पुराने ही साल चल रहे हैं उसमें, इसीलिए इसमें भी वो चेंज नहीं किया। ये 22-23 है, ठीक है। और जगह देख लीजिए, कुछ भी दिल्ली वैली नहीं है, तो एक बार देख लेना चाहिए अभी भी कि दिल्ली वैली है क्या करके, क्योंकि उसमें सब जैसे आप नेट म्युनिसिपल वैल्यू अगर दिया है तो आप जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे करना है उसमें, ठीक है। और बाकी सब में आपको जो सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू या ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया है ना, इसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्स कंप्यूट होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ तो देख लेना चाहिए, राइट। सो व्हाट आई सेड इज, if it is Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, you have to compute tax, municipal tax on net municipal value. In other cities, it is like gross municipal value, which is the same as net for them. There's no difference between gross and net for others. Okay. Now this is GAV, gross annual value. After 4 steps, which we compute, step 1, step 2, that they have directly given. ठीक है, तो ये डायरेक्टली उन लोगों ने दिए हैं। और चलिए अब जो है तो ये इतना बेसिक डेटा है। नाउ दे हैव गिवन यू म्युनिसिपल टैक्स, सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स, all these are basically municipal taxes, even if separately given, these are all basically municipal taxes only। तो अभी आपको जो है ना इसको डिडक्शन कितना मिलेगा ये हमको बताना है, you have to compute how much they will get। So what you have to do, first thing is, okay, take all municipal values, never take gross annual value for these computations, okay। They've just given you to compute to confuse you, then you know you will use it later on to compute NAV, that is another thing, but they've given it along with this, so by mistake don't use this, even figures are similar, okay, always use municipal value। So now let us find out these 3 tax, ठीक है। तो जहां already given है like 5,000 whatever figures, that is fine, where percent is given, just do percentage calculation on this, on these values। So in first case 10% of 2 lakh is 20,000, this is what I've written here, okay, is 20,000, then 5% of 2 lakh is 10,000, third one is 6,000, okay, this is how all these have been computed, just take the percentages, you'll get all this, okay। So you got total municipal tax now. Now what you have to do is add all 3, so you will get, so this gray part is basically the answer part, okay, this I have inputted, problem is still here, okay। So this is, that's why I have changed the color, okay। So if you want I can just cut this off from this little down, okay। So municipal tax we got, sewerage tax, all this in, add all 3, this is your total tax or total municipal tax, fine। So now there is some additional information they are given, okay। So in case of H3 municipal tax paid for financial year is earlier, some earlier years, okay, is 2 lakhs, this is also deductible, okay, and this is for the current year, this is house 3, okay। So his total deduction he'll get is 2 lakh plus 31,000, okay। Any doubts here? Any tax paid for previous years is allowed, and this data was for our current year, so that's why we will add 2 lakhs, so he will get 2,31,000, see I'll show you, see 2,31,000, so here
Basically, this is your GAV given in the problem. GAV is given in the problem. Okay. All three tax you are adding. So in your current municipal tax, you just added that tax. Okay. Add to municipal tax because it's municipal tax, right? And sewerage and water tax I've kept here. So you can just add and just put it directly here. This can be shown in notes below. Okay. So this is how you will, this will come as negative here. Okay. And then what else? So house 3, house 4 and house 6. So house 1 and house 2 has not given any information. So just take it directly. Take gross annual value, put these values directly. Okay. Total is 5,000 and 36,000 right here. See 5,000 and 36,000. Okay. Just put that and you'll get NAV, net annual value. The third one we saw. The fourth, fifth and sixth. Fourth is again, fifth is like fifth, they have given nothing. So let's see fifth. 76,000 is fifth. Here, see fifth one is 76,000, correct? Just put 76,000 gross annual value and this will be your net annual value. So 4 and 6 we have to do some additional information is there. So let's see. Okay, 4 or 6 देखेंगे. House for municipal tax paid for 22-23 is 3,000. Financial year है वो, ठीक है, याद रखना. It is not assessment year 22-23. I think financial year, यानी for the future previous year they have paid now. So he will not get anything. So 3,000 will not be considered. 3,000 consider नहीं किया जाएगा, ठीक है, फ्यूचर के लिए. इसीलिए जो आपका हाउस 4 का जो है वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसका कोई रोल ही नहीं है. हाउस 4 का देखते हैं कितना है यहाँ. ये हाउस 4 हमारा 1 लाख. ओके, सी 1 लाख here. 5 lakh minus 1 lakh, you get 4 lakhs. Okay, done. Last is point C, house 6. All taxes charged by municipality are paid to the extent of 80%. यानी 20% is unpaid. So 80% is paid. Out of the, how is split of 80% is 50 by owner, 30 by tenant. Okay. So basically, whatever municipal taxes that person has, whatever are the municipal taxes, okay, only 50% deduction he will get, right? 20% is unpaid, he won't get. 30% is paid by tenant. So 50% deduction he'll get. So let's see what is, how much is it for house 6. Okay, house 6 is this one. Okay, so 61,000. So 50% of 61,000 is akin to upon 2, right? 3,500. Here it is 3,500. Okay, got it? So that 50% individually you can do in all the lines. 50% you can take. ठीक है, समझ गए? इस तरह से ये आया है. ये प्रॉब्लम समझा आप लोगों को सबको? एक बार ये वीडियो को फिर से देख लेना घर जाके, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा. सिर्फ प्रोसीजरल, प्रोसीजर फॉलो करना है बस आप, ठीक है. तो एक बार आप घर जाके देखोगे तो आप क्लियर हो जाएगा. आज के दिन हमारा काफी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है. सो आई थिंक नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद डिडक्शंस चालू हो जाएगा. So maximum by next Sunday and Monday house property हो जाएगा. We'll start salaries on Tuesday. ठीक है, तो इसके नोट्स मैं आपको दूंगा. मुझे आप दीजिए, लिटिल बिट ऑफ फॉर्मेटिंग वर्क थोड़ा है. I'll give it soon. ठीक है, give me like 1 or 2 days. ठीक है, तो अगर नहीं हो पाया तो सैटरडे को I'll give you whole chapter. ओके, होल चैप्टर का नोट्स में दे दूंगा सैटरडे, अगर नहीं हो पाया तो 1-2 दिन, राइट? चलिए, ओके, थैंक यू देन. तो सी यू टुमारो. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट. Thank you, sir. गुड नाइट.